الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. محترم مسلیان، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ 6 روزہ مکمل کرنے اور 7ویں تراویح کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح صحت و عافیت کے ساتھ پورے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ ہی ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے، آمین. محترم حاضرین، بات حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی آغاز تو کیا تھا، ابھی ان کا کچھ تحمیدی باتیں اور کچھ باقی ہے. یہ وہ قصہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا ہے. تمام انبیاء، جتنے بھی انبیاء آئے اور قرآن مجید کے اندر ذکر ہے، ان تمام قصوں میں سب سے احسن قصہ کہا گیا ہے. اسی کا ذکر ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں. ابتدا ہو چکا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. آئیے جو پچھلے دن جو میں نے بات کی تھی تھوڑا سا ریویژن ہو جائے اور لنک اسی سے جوڑ دیں اور بات آگے بڑھا دیں. کل بات آئی تھی، حضرت ابراہیم سے شروع کیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ تھوڑا سا ساتھ دیجیے. 2 بیٹے تھے. ایک کا نام کیا؟ اسماعیل. دوسرے کا نام اسحاق. اسحاق کے کتنے بیٹے تھے؟ 2 بیٹے تھے. ایک کا نام، ایک پہلا محیص، دوسرے کا نام یعقوب. اب یعقوب علیہ السلام شادی کے لیے کہاں گئے تھے؟ اپنے ماموں کے گھر. جو اپنی جان کا خطرہ ہو چکا تھا، اپنے بھائی سے ہی وہ چلے گئے اپنے ماموں کے گھر، جو عراق کے اندر شہر حران ہے، وہاں پر پہنچ گئے تھے. اور وہاں شادی کے لیے کیا شرط رکھی تھی ان کے ماموں نے؟ 7 سال بکرے چرانی. 7 سال آپ کو بکریاں چرانی پڑے گی تو ہی آپ کے ساتھ شادی کرائیں گے، ورنہ نہیں. انہوں نے شرط کو منظور کر لی اور 7 سال بکریاں چرائی. لیکن جنہوں نے، جس لڑکی سے انہوں نے پیغام بھیجا تھا، اس کے ساتھ نکاح نہیں کرایا، بلکہ اس کے بڑی بہن سے کرایا. تو جب دیکھا گیا کہ یہ تو معاملہ الٹا ہوا، تو بھانجے نے ماموں سے کیا کہا کہ میں پیغام چھوٹی والی کے لیے بھیجا تھا، آپ نے شادی بڑی والی سے کر دیا. بڑی والی کا نام کیا تھا؟ لیا. اور چھوٹی کا نام راحیل. تو پھر ماموں نے کیا کہا، اگر چھوٹی سے شادی کرنی ہے تو آپ کو اور 7 سال بکریاں چرانی پڑے گی. پھر منظور کر لی اور 7 سال چرا. 14 سال. اللہ اکبر. 14 سال کی محنت مزدوری کے بعد بیوی حاصل ہوتی. اگر اس شادی کو لے لیا جائے اور آج کل کی شادی کو لے لیا جائے تو اکول ہو سکتا. شادی میں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جب مہر کی بات آتی ہے 5,000 روپے، 3,000 روپے. لیکن اس کے بدلے میں سسر جی کے خون بھی چوس لیتے اور پسینہ بھی چوس لیتے. کچھ بھی نہیں چھوڑتے، نہ پسینہ چھوڑتے نہ خون چھوڑتے، بلکہ پسینہ بھی سوکھ جاتا ہے، خون بھی سوکھ جاتا ہے. کیسے؟
बेटी को सजाना, बेटी के साथ साथ जंगल का होना, बेटी के साथ साथ 10 भरी, 15 भरी, 20 भरी सोने का होना, गोल्ड का होना, सिल्वर का होना, न जाने क्या क्या होना। और ऊपर से ये तो जंगल भी हो गए, गोल्ड भी हो गए, सिल्वर भी हो गए, और ऊपर से कैश भी होना। उसको आप लोग क्या कंडम ना कटनम क्या बोलते हैं आप लोग? मैं उसको कंडम बोलता। कंडम के माने एकदम खराब चीज, और वो खराब ही है, वो हराम है, लेकिन बड़े मजे से हम ले लेते हैं और खाते हैं। और यहाँ तक कि बात यहाँ तक आ जाती कि अगर ससुर के पास जंगल ना हो, एक छोटा सा मकान हो, तो उस मकान को भी बेचकर दामाद को देने के लिए तैयार। जंगल खरीदते हैं, दामाद के नाम या बेटी के नाम करके भेज देते हैं। अब पूरी जिंदगी भर वही ससुर, और ससुर के और ये तो जो बेटे हैं जिंदगी भर के लिए रेंट के मकान पे आ गए। गोया कि उस बेटी के चलते बाप ने एक बेटे को फुटपाथ पे डाल करके बेटी का घर बसाया। वो दामाद, जो दामाद ससुर के घर पे आते बड़ी खातिरदारी करते हैं, लेकिन अब तक तो अपने मकान में थे, लेकिन जब मकान बेच दिए जाते हैं वही दामाद रेंट के मकान पे आके रहते हैं। लेकिन याद रखिए, एक अरबी का मकूला है, कमा तुदीनो तुदान, जैसी करनी वैसी भरनी। आप इस वक्त आप अपने ससुर के खून चूस लिए, पसीना चूस लिए, एक दिन आपका भी एक वक्त आएगा कि आपके भी कोई दामाद बन करके आएंगे। आप जितना लिए ना उससे भी कई गुना ज्यादा देना पड़ता है। हमारा जो जनरेशन आ रहा है जैसे जैसे, वैसे वैसे माहौल सुधरता नहीं है बल्कि और बिगड़ता जाता है। अब ये शादी के लिए 14 साल तक मेहनत और मजदूरी की, कितने लाख रुपए बन सकते हैं? आप ही कैलकुलेशन कर लीजिए, कितने लाख रुपए बन सकते हैं। यह है मेहर। इस मेहर के एवज उन्होंने बेटी की शादी कराई। और सिर्फ यही नहीं, हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पहली शादी हुई थी, किनके साथ? हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने उनके मेहर में 20 ऊंट इनायत की थी। 20 ऊंट, 20 ऊंट की अब कीमत लगा लीजिए। उस वक्त 20 ऊंट दे रहे हैं, अगर आज की तारीख में अगर 20 ऊंट दे रहे हैं, 20 ऊंट की कीमत लगा लीजिए कितनी महंगी। गोया के क्या कहते हैं, BMW कार भी शायद फेल हो जाए, इतने महंगे महल। तो इतने यानी 20 ऊंट दे करके शादी करा के लाए अपने पोते, मेरे भाई और दोस्तों। तो महर जो है शादी के अंदर, मेरा कहने का मकसद ये है कि शादी के अंदर महर बहुत अहम चीज है। उस महर के एवज एक लड़की लड़का के लिए और एक लड़का लड़की के लिए हलाल होते हैं। वरना आप देखेंगे जब निकाह पढ़ाते हैं तो क्या कहते हैं इमाम साहब कि इतने महर के एवज फला लड़की का निकाह आपके साथ कर दिया। एवज, एवज का मतलब बदला। तो उस महर का अगर नाम ना लिया जाए, अगर महर ना दिया जाए, निकाह नहीं होता। महर बहुत जरूरी है, इसलिए महर को कम ना समझे और हल्के में भी ना समझे। महर बहुत अहम चीज है शरीयत इस्लाम में शादी के लिए। लेकिन आज महर को बहुत हल्का समझ लिए हैं और कटनम को बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं। अल्लाह रहम करे। तो बहरहाल बात को यहीं रोकते हैं। तो मामू की बेटी से शादी हो गई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, दोनों बेटी अकल में बोल दिया था, उस वक्त जायज था दोनों बहन को एक निकाह में, एक आदमी अपने निकाह में रख सकते, लेकिन तौरात के नुज़ूल के बाद ये हराम कर दिया गया था। अब मामू के घर शादी तो हो गई, 20 साल रहे मामू के घर। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामू के घर में गोया के घर जवाई बन करके, जवाई बोलते हैं आप लोग ना, घर जवाई बन करके यानी 7 और 7 14 साल तो ऐसे, यानी और यानी 6 साल
6 साल तक गोया के घर जमाई बनकर के रहे। अब अल्लाह ताला का हुक्म होता है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को कि आप अपने मामू का घर को अलविदा कीजिए और अपने आबाई वतन पहुंचे। आबाई वतन छोड़ करके आए थे किनान से, तो अपने आबाई वतन पहुंच जाए। जब ये हुक्म होता है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामू से कहते हैं कि अल्लाह ताला का हुक्म हो चुका है, अब मुझे यहाँ से रवानगी और यहाँ से निकलने की आप इजाज़त दीजिए, मैं अपने बाल बच्चों के साथ यहाँ से रवाना हो जाऊँ। ये सुनना था कि मामू को बड़ा सदमा हुआ। अब तक तो दामाद भी यहीं, बेटी भी यहीं और नवासे भी यहीं, अब पूरे घर खाली करके चले जाएंगे। जब एक बेटी बाप के घर से जब विदा होते हैं तो शायद बेटी तो जाते, लेकिन बेटी बाप और माँ के दिल को भी शायद छीन करके लेके चले जाते। ये तो हर वो बाप और माँ इस चीज को अनुभव कर सकते हैं जिनके बेटी की शादी हो चुकी है। ये चीज अच्छी तरह अनुभव कर सकते हैं। मेरी तो बेटी की शादी नहीं है, लेकिन मैं दूसरे को देख करके मैं वो दिन याद करता हूँ कि शायद वो दिन हमारा भी आए और हमारे दिल भी इस तरह ही जो है शायद छीन करके चले, हमें भी वो देख करके रोना आता है। तो बहरहाल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के मामू को, लाबान को ऐसा ही हुआ और उनको बड़ा गम हुआ कि ऐसा क्यों। उन्होंने अपने दामाद से कहा, भांजे से कहा कि आप मत जाइए। कहा कि नहीं, अल्लाह ताला का हुक्म है, मुझे जाना ही पड़ेगा। बहरहाल उनकी बात पर वो इनकार नहीं किए और अपनी बेटी को तैयार किए, दामाद को तैयार किए और साथ साथ ज़ाते सफर और एक बकरी का रेवड़ उनको हदिया के तौर पर दे करके रवाना कर देते। अब देखिए, बीवी बच्चे साथ हैं और एक बकरी का रेवड़ भी है, पैदल जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। आज कार आ जाती है, महंगी कार आती है, फूल लगे सजे होते हैं और बड़े इस्तकबाल के साथ उन्हें विदा भी करते हैं, लेकिन वो रवानगी पैदल रवानगी चले जाते हैं, चलते जाते हैं, यहाँ तक कि जिस भाई की दुश्मनी से अपने आबाई वतन छोड़ करके अपने मामू के घर आए थे, उस भाई के शहर पहुंच जाते। इन्हें पता नहीं होता, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को पता नहीं होता कि मेरा भाई इस शहर के अंदर है और इस एरिया का पूरा बादशाह यही बने हुए। और उस वक्त ऐसा था कि जो भी बादशाह जिस एरिया का बन जाते थे, यानी एक पक्षी भी उसके जमीन से गुजर नहीं सकते। आज भी ऐसा ही है, हमारी इंडिया के ऊपर से अगर पाकिस्तान के हवाई जहाज उड़ जाए फौरन गिरा दे, या पाकिस्तान या हमारा इंडिया का पाकिस्तान से गुजरे तो वो भी गिरा दे। यानी हर कंट्री वाले जमीन से लेकर आसमान तक उनकी हुकूमत होती है, और उस जमाने में ऐसा ही था। तो ये तो हवाई जहाज की बात है, वो तो यानी जमीनी सफर थी। तो कोई भी काफिला लेकर आते तो उनकी जो सिपाही या लोग जो खड़े होते थे, तो वो लोग तफ्तीश करते कि काफिला कहाँ से आ रहा है, कहाँ जाना है, किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, ये सारी तफ्तीशें होती थी। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बीवी बच्चे के साथ और बकरी के रेवड़ के साथ आ रहे थे। उनके सिपाही को पता हो गया कि काफिला आ रहा है, भागते हुए आए और महीस को कह दिया कि कहीं से काफिला आ रहा है। ये कैसे हो सकता, हमारी जमीन पे काफिला बिना हुक्म, यानी बिना इजाजत के, बिना परमिशन के, ये कैसे हो सकता हमारी जमीन से गुजर जाए। जाओ तफ्तीश करो। भागे, जा करके तफ्तीश किया, कहाँ से आ रहे हो, नाम क्या है, कहाँ जाना है, सारा डिटेल्स ले लिया। बता दिए कि मैं याकूब हूँ और मैं मेरे मामू के घर से, लाबान के घर से मैं वापस अपने आबाई वतन जा रहा हूँ। आकर के महीस को कहा कि उस रेवड़ का जो मालिक है उसका नाम है याकूब, और अपने बीवी बच्चे के साथ अपने मामू के घर से अपने आबाई वतन जा रहे। ये कहना था कि महीस को 20 साल पुरानी बातें याद आ जाती। याकूब नामी, हाँ याकूब नामी,
کہاں سے آ رہے ہیں؟ عراق شہر ہیران سے اپنے ماموں کے گھر سے آ رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے آبائی وطن جا رہے ہیں, کنعان جا رہے ہیں. فوراً انہیں احساس ہو جاتا ہے یہ تو میرا بھائی ہے, یہی بھائی میرے ڈر سے بھاگ چکے تھے. یہ محیص فوراً ایک لشکر کو تیار کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں ان سے ملنے کے لیے. کس سے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملنے کے لیے. جب ان کی خبر حضرت یعقوب کو ملتی ہے کہ محیص ایک لشکر کے ساتھ میرے پاس آ رہے ہیں, بھائی ڈر جاتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام ڈر جاتے ہیں کہ جس بھائی کے ڈر سے اپنی جان بچا کر کے میں نکلا تھا اور اپنے ماموں کے گھر 30 سال گزار کر کے آیا, آج پھر وہی سامنے پڑ گئے. لیکن جب ان کو ڈر محسوس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہہ دیا کہ اے یعقوب تم ڈرو مت, بلکہ تم اپنے بھائی کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ. استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ. محیص بھی ان کے برائی پر نہیں گئے تھے بلکہ ان کی استقبال کے لیے جا رہے تھے. اب پرانی باتیں وہ بھول جا رہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہہ دیا کہ ان کی استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ, تو فوراً یہ بھی اپنی جگہ سے جہاں پڑاؤ ڈالے تھے وہاں سے نکل کر آگے آتے ہیں اور اپنے بھائی جو محیص بڑے بھائی ہیں وہ بھی آگے آتے ہیں اور دونوں آمنے سامنے مل جاتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی 20 سال کا یہ فاصلہ اور وقفہ, دونوں بھائی جب آمنے سامنے جب ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے گلے لگ کر کے چمٹ کر کے ایسا رونے لگتے ہیں اور وہ 20 سال پرانی باتیں یاد کرتے ہیں. 20 سال پرانی باتیں کہ جس بھائی کے ڈر سے, ان کی دشمنی کی ڈر سے میں بھاگ نکلا تھا, آج وہ بھائی وہ ساری بغاوت, عداوت, دشمنی کو بس پشت ڈال کر کے آج گلے مل رہے ہیں. وہ سارے کے سارے بالکل پانی ہو چکے ہیں, ایک دوسرے گلے لگ کر کے روئے جا رہے ہیں اور ساری نفرتوں کو گویا کہ خون کے آنسو بہا کر کے بالکل پانی کر دیا. محیص بہت دیر تک جو ہے نا دونوں ملے رہے. پھر جب ایک دوسرے کو تسلی ہوئی, ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں. محیص اپنے بھائی یعقوب کو گھر لے جاتے ہیں بلا کر, اور لے جا کر کے ان کی اچھی طرح مہمان نوازی کرتے ہیں. پورے لاؤ لشکر کے ساتھ, ریوڑ کے ساتھ جاتے ہیں اور کئی دن تک جو ہے نا ان کے گھر مہمان بن کر کے رہتے ہیں. مہمان بن کر کے رہنے کے بعد کئی دنوں کے بعد حضرت یعقوب محیص سے کہتے ہیں اب مجھے اجازت دیجیے, میں اپنے وطن کو روانہ ہو جاؤں گا. بہرحال محیص اپنے بھائی کو اجازت دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے جا سکتے ہیں. وہاں سے پھر روانہ ہوتے ہیں, چلتے جاتے ہیں. ایک جگہ جب وہ اپنے بھائی کی دشمنی کے ڈر سے جب وہ اپنے ماموں کے گھر آئے تھے تو ایک جگہ رات کو پڑاؤ ڈالے تھے, آرام کے لیے سو گئے تھے. تو ایک پتھر اپنے سر کے نیچے رکھ کر کے سو رہے تھے تو ان کو خواب آیا تھا. خواب یہ آیا تھا کہ زمین سے لے کر کے آسمان تک سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں اور اس سیڑھی سے فرشتے زمین سے آسمان میں چڑھتے ہیں اور آسمان کے فرشتے پھر اسی سیڑھی سے اترتے رہتے ہیں. یہ دیکھا اور دیکھا کہ انہیں یہ کہا جا رہا ہے اے یعقوب تو فکر مت کر, تو اس زمین کا بادشاہ بن جائے گا اور اللہ تعالیٰ تجھے مال سے, دولت سے, اولاد سے بھرپور تجھے برکت عطا فرمائے گا. یہ جب خواب دیکھا تو انہیں کچھ محسوس ہوا, حضرت یعقوب کو محسوس ہوا کہ میں ایسا خواب دیکھا, اس کا مطلب یہ کچھ اچھا ہی ہونے والا ہے. تو انہوں نے اچھا سمجھ کر ایک منت مان لی, اسی وقت ایک نظر مان لی, منت مان لی کہ اگر میرا یہ خواب سچ ہوتا ہے, پورا ہوتا ہے تو میں اسی جگہ پر اللہ کے نام پہ ایک اللہ کا گھر بنا دوں گا. تو اس نشانی کے لیے انہوں نے جس پتھر کو تکیہ کے طور پر استعمال کیے تھے اس پتھر کو تیل
तेल लगा करके थोड़ा सा, जब पत्थर में अगर तेल लगाएंगे तो थोड़ा चिकनाहट हो जाता है, निशानी के लिए उन्होंने तेल मालिश की पत्थर को, ताकि जब वापस रवानगी हो तो उस पत्थर को पहचान पाए। तो उन्हें वो 20 साल बाद पुरानी बातें याद थी। तो जब वो जगह पर पहुंचे तो वहीं पर पड़ाव डाल दिया और उस पत्थर की तलाश करने लगे, यहाँ तक के बहुत जल्द वो पत्थर मिल गया। जैसे उन्होंने तेल लगा करके छोड़ कर गए थे वैसे ही चिकनाहट दिखता है। तो वहीं पर पड़ाव डाले और अल्लाह के नाम पर उन्होंने एक मिन्नत जो मानी थी कि मैं अल्लाह के नाम पे घर बनाऊंगा, उन्होंने अल्लाह के नाम पे घर बनाया और वो घर का नाम आज बैतुल मक़दिस के नाम से जाने जाते हैं, बैतुल मक़दिस के नाम से जाने जाते हैं। तो उस घर का जो जहाँ पर वो जो घर बनाए थे वो जमीन पे एक आदमी का था जिसका नाम रखीश था। रखीश, उस रखीश इंसान से जमीन 100 बकरियां देकर जमीन खरीदी थी, 100 बकरियां देकर जमीन खरीदी और जमीन खरीदने के बाद वहीं पर बैतुल मक़दिस की तामीर की। ये तामीर के दरमियान उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा। झटका क्या लगा? उनकी छोटी बीवी, क्या नाम था? राहील, छोटी बीवी। उनके पेट से कौन हुआ? यूसुफ। अभी बिन्यामीन पेट में ही थे जब मस्जिद की तामीर हो रही थी, बिन्यामीन पेट में ही थे कि तामीर के दौरान जचकी हुई, तामीर के दरमियान ही उनकी जचकी हुई और उसी जचकी में यानी पैदाइश के वक्त ही बिन्यामीन तो सेहत व आफियत के साथ पैदा हुए, लेकिन माँ का इंतकाल हो गया, राहील का इंतकाल हो गया। ये झटका हजरत याकूब को बहुत बड़ा झटका लगा। छोटे बच्चे, ये छोटे बच्चे छोड़ करके वो अल्लाह के प्यारे हो गए। ये झटका इतना उनको झटका लगा, वो यानी गोया के बाप का इंतकाल होता है छोटे बच्चे को छोड़कर तो उसे यतीम कहलाते हैं, लेकिन माँ जब एक छोटे बच्चे को छोड़ करके जाते हैं तो गोया पूरा घर यतीम बन जाते हैं। तो उस यतीमी की बुनियाद पर हजरत याकूब को इतना बड़ा सदमा हुआ कि इस छोटे बच्चे की परवरिश कौन करेगा, इतना सदमा हुआ। यहाँ तक के खैर उन्होंने जो मिन्नत मानी थी वो मिन्नत को पूरा कर दी, मस्जिद की तामीर कर दी और तामीर करने के बाद फिर वहाँ से रवाना हुई। अब आगे क्या होता है इंशाअल्लाह फिर बातें आगे बढ़ाऊंगा कल। अल्लाह ताला से दुआ को कि अल्लाह ताला हम सबको दीनी बातों को सुनने समझने और उसके ऊपर अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तो हमारे रमज़ान को कबूल फरमा, या अल्लाह तो हमारी नमाज को कबूल फरमा, या अल्लाह तो हमारी इस बैठक को कबूल फरमा। या अल्लाह हम में से जिनके भी वालिदैन गुजर चुके हों, या अल्लाह तो उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमा, उनकी लग्ज़िशों को माफ़ फरमा। या अल्लाह इस कोविड-19 में जिनके भी परिवार में से जो भी गुजर चुके हों, तेरे प्यारे हो चुके हों, या अल्लाह उन्हें भी करवट करवट जन्नत नसीब फरमा, उनकी भी लग्ज़िशों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे इस मस्जिद के एक मुसल्ली खास सलीम भाई, वो भी तेरे प्यारे हो चुके हैं, या अल्लाह तो उन्हें भी करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। अल्लाह उनकी लग्ज़िशों को माफ़ फरमा, उन्हें आला इल्म में जगह अता फरमा। या अल्लाह ख़वातीन की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह तेरे घर में तेरी इबादत के लिए अल्लाह बहुत सारे ख़वातीन भी आती हैं, तू बेहतर जानता है। अल्लाह तो उनकी लग्ज़िशों को माफ़ फरमा। या अल्लाह उनकी इबादतों को शर्फ़ कबूलियत बख्श। या अल्लाह तो हर बला मुसीबत और बीमारी से हमारी हिफाजत फरमा, हमारे बाल बच्चों की हिफाजत फरमा, हमारे माँ और बहनों की हिफाजत फरमा, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। या अल्लाह तो हमारी रोज़ी रोज़गार में बरकत अता फरमा, मुफलिसी बेबसी बेकसी बेसहारगी से हमारी हिफाजत फरमा, हमारे मुसल्लियों की हिफाजत फरमा, हमारे माँ और बहनों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह तो हमें इस दीन पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तो हमारी दुआओं को अपने फज़ल करम से कबूल फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।